Namaskar, welcome to Ek Samvad at Arunimankuran. Today we're in conversation with Dr. Sangeeta Deshpande, a Kathak guru who's keeping a legacy alive. Dr. Sangeeta Deshpande is a Kathak dancer and a corporate trainer. We are so delighted to have you here. Warm welcome to you. Thank you for joining us. Thank you. Thank you for having me. It's a pleasure. A word about Arunimankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunimankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact. That's what inspires us to keep going. Our guest today, Dr. Sangeeta Deshpande, is a dynamic professional with over 22 years of experience in academics and corporate with a passion for dance. She is the daughter and a disciple of Guru Sri Madan Pandeji, one of the senior most Kathak gurus of Central India, and a disciple of Srimati Sandhya Bhargav, who is a disciple of Pandit Birju Maharaj. She has been learning and practicing and performing Kathak since she was 3 years old and gave her first performance at the age of 3. She has performed at various concerts across India on Nagpur Doordarshan and DD Bharati. She conducts dance classes under the banner of Swapnapurti Kala Kendra, Civil Lines, Nagpur, and is an examiner at Gandharva Mahavidyalaya Mandal. She has initiated Open Dais, a platform for established and budding artists, wherein a program is conducted on the fourth Friday of every month. Very warm welcome to you, Dr. Sangeeta, and share about your initial journey with us. How did you start learning dance and how was the experience? Okay, so as you've mentioned in the introduction, I have been fortunate to have been born in a family where art was there. My father, Guru Madan Pandeji, he is one of the senior most artists in Central India, a very known name. And I've also learned from my elder sister, Sandhya Bhargav, who's disciple of Pandit Birju Maharaj ji. So I've had that opportunity to have guidance and been into the art from my, say, whenever I got into my senses, I should say. So I had my first performance, which my parents tell me when I was just 3 years old in the pre-nursery, I think. That was the time I did a small performance in my school. So that is what has been told to me. So in my family, I have seen my father all my life being devoted, dedicated to the art form. How passionate he is about it, how much devoted he is about it, and same I've seen my sister doing all her life. So that was a combination from my childhood. I have been learning dance along with my studies throughout. I was in school. I was supposed to do my studies and continue learning dance regularly without any break, no breaks even during my exams. So that was the way it was. You know, it just struck me that today is 2nd March and it's World Teen Mental Health Day. And as we speak, you know, when you were saying that पढ़ाई करते करते भी ये नहीं था कि पढ़ाई कर रहे हो तो ये छोड़ दो. I think that is the big difference that we need to realize. Yes, absolutely. This is what I even tell my students, all my students. Like the things have changed so much nowadays. The parents take so much of stress and they bring that stress along for the child also. Yes. The child is unaware. They're such little ones, and the parents would say, "Ma'am, she has her exam, so she will not be coming." How old is she? She's just 7. She's just 8. Absolutely, yes. So I think both of us can convey this message to everyone who's listening in. People think dance bole to it is physical activity, so it is an exercise. So a lot of people would come to us and say, "Ma'am, if I join,
I'll be more fit. This is a form of exercise. I'll lose weight. So that is there, that can be seen by everybody. But a lot of things that are there about Yes. classical art forms, I will not say just dance, all True. classical art forms, definitely is that you get so many benefits which people are not aware. As you Yes. very rightly said, the Yes. mental balance. Yeah. No other thing is required. During COVID, I think everybody who is into art and was practicing art, nobody would have gone into depression. True. Throughout life, nobody will ever go into depression. If you are pursuing some kind of art, I would say classical art forms very clearly over here. I know. I know. So, Yes. right. Then, like when I come to Kathak, there are lot many benefits. Like all your academic subjects, they also improve. Your maths improves. There's a lot of maths when we are dancing. There are numbers which people don't know. There are numbers. So automatically those calculations, understanding numbers, thinking fast, your memory, attentiveness, then being into the present, Yes. right? Your memory, it becomes good. All your other aspects, you get so many benefits out of these classical art forms. I've had students like my father also had many students. He has taught mentally challenged, then deaf and dumb students. He has had them, It's amazing. and now also I have a few students, like they come, the performance in their school, like academics, when you say it's not just school, even college, the academic performance also improves if they are into this art form, if Yes. they are learning, Yeah. definitely. And parents come and tell, iska result better ho gaya hai. Now the child is a little more attentive, the child enjoys a little more, is able to speak. You become public speakers also. Yes. I am into trainings. I do corporate trainings as well. So somehow I feel that confidence of speaking has also come because of dance. Stage fright चला जाता है आपका. स्टेज फ्राइट चला जाता है. प्लस व्हेन यू आर डांसिंग, व्हेन यू आर इनटू एनी आर्ट फॉर्म, तो आप सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते हो, आप ऑडियंस से इंटरैक्ट करते हो, इंटरैक्ट विद देम. Yes. So that also gives you a lot of confidence, and it is very different. It cannot be explained. You have to be into it. पूरी तरह जब उसमें जाते हैं ना, अपने आप उसके मजे भी आते हैं, उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और अलग आप जोन में जाते हैं. इट इज जैसे वो बोला जाता है ना कि हम जब पूजा करते हैं या हम मेडिटेट करते हैं, तो डांस is a form of meditation. When you're dancing and आप एक वो लेवल आती है जब आप कनेक्ट होते हो, आप वो मेडिटेट कर रहे हो. तो आजकल तो नए नए बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, डांसिंग मेडिटेशन एंड ऑल, लॉट ऑफ पीपल आर प्रमोटिंग ऑल दैट. बट ये तो ऑटोमेटिकली हम करते चले आ रहे हैं. एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म में वो, जैसे कथक है, तो कथक में हमने सिर्फ तत्कार भी की, जो पैर के हमारे मूवमेंट्स पहला जो सीखते हैं हम, उसको तत्कार कहते हैं, जो हम पैर से करते हैं. अगर आपने एक 15-20 मिनट तत्कार भी कर ली, तो वो आपका एक मेडिटेशन हुआ. सो इट इज लाइक दैट. Okay, let's talk a little bit about Kathak. आप जैसे सिखाते हैं किसी को what is Kathak and what are the basics, because you know I found it absolutely amazing that आज के जमाने में the last time round when we came there was no Yes. place to sit. तो ये मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि एक क्लासिकल डांस के परफॉर्मेंस में भी ऐसा हो सकता है, you know, and that's thanks to open dais and people like you who are keeping it alive. तो ये चैलेंज भी है एक तरह से. लेकिन कथक के बारे में हम अगर किसी को एजुकेट करना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कथक, पहला तो ये बताऊं कि कथक क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है, भारत का है. इट इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का नृत्य है. वहां से ये शुरुआत हुई है कथक की, ठीक है.
अब कथक का एक सरल एक सेंटेंस में जब हम बोलते हैं तो कथा कहे सो कथक कहलावे, अरे वाह, कथाकार दैट्स जो कहते हैं, ब्यूटीफुल। हाँ हाँ। हम्म कथा कहे सो कथक कहलावे। सो हम्म जो कथाकार थे, जो सबसे पहला जहां से कथक शुरू हुआ माना जाता है, हम्म लव कुश। हम्म तो लव कुश ने जो कथा सुनाई वो हम्म कथक था, वहां से कथक की शुरुआत हुई है। हम्म तो हम्म स्टोरी टेलिंग जो हम बोलते हैं, तो इसीलिए ऑल कथक आर्टिस्ट, कथक डांसर्स आर स्टोरी टेलर्स। सो वी आर कन्वेइंग स्टोरीज थ्रू हम्म आवर डांस। सो हम्म दैट इज कथक। हम्म ओके, सो लेमैन मतलब एक जनरल किसी पब्लिक को समझने के लिए, इंडिया में वी हैव वेरियस क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, 8 क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स। उसमें अलग अलग सारे जो क्लासिकल डांसेस हैं वो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जिस स्टेट से, जैसे जहां से आप होते हैं, वहां की भाषा, वहां का पहनावा, वहां का सब कुछ आ जाता है। उसी तरह कथक में जो पहनावा आया, 2 तरह के वेशभूषा होती है। एक घाघरा पहना जाता है, घाघरा चोली और दुपट्टा, और दूसरा होता है अनारकली, जो फ्रॉक पैटर्न जिसे हम कहते हैं। तो कैसा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 जगह से है। तो राजस्थान का पहनावा जो घाघरा वो आ गया, एंड फिर मुगल आए एंड मुगल्स इन्वेडेड। तो जब वो हुआ तो थोड़ा सा वेशभूषा में भी फर्क आया, तो फ्रॉक भी पहना जाने लगा। तो इस तरह से है। देन वी हैव डिफरेंट घरानाज इन कथक। सो वन इज जयपुर घराना, वन इज लखनऊ घराना, द थर्ड वन इज बनारस घराना। ठीक है, तो लाइक आई एम लर्निंग अंडर जयपुर घराना। माई फादर इज डिसाइपल ऑफ पंडित कुंदनलाल गंगानी जी, एंड वो जयपुर घराने के एक बहुत माने बड़े गुरु हैं, और मेरे पिता गुरु मदन पांडे जी उनसे सीखे हैं, और मैं भी अब उनसे सीख के तो मैं जयपुर घराना करती हूँ। तो इस तरह से 2 घराने हैं, बट घराने होते हुए भी उनमें आपस में मेल भी होता है, कुछ फर्क होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उस जगह का अंदाज उसमें आ जाता है, और वो जो गुरु हैं उन्होंने जिस तरह की बंदिशें, जो चीजें की जाती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। उस तरह से घरानों का फर्क होता है। एक बहुत बेसिक लेवल पे समझने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ, है ना। तो इस तरह से प्लस देखा है आपने, घुंघरू बांधे जाते हैं, 4 कली के घुंघरू होते हैं जो रस्सी में बांध के उन्हें पहना जाता है। और इसमें हमारी बंदिशें जो होती है, तो वो तबले के बोलों से बने हुए जो बंदिशें होती हैं, तबले और पखावज के, ठीक है, उन पर हम नृत्य करते हैं। फिर भजन पर नृत्य होता है, ठुमरी पर नृत्य होता है, वंदना पे नृत्य होता है। इसके अलावा भाव पक्ष होता है, जैसे 2 पक्ष हम इसको मान सकते हैं। एक नृत्य पक्ष, नृत्य और नृत्य, नृत्य मतलब प्योर टेक्निकल पार्ट, जिसमें हम जो बोल होते हैं उसके ऊपर नाच करेंगे, उसके ऊपर डांस करेंगे। और बाकी फिर जब हमारा भाव पक्ष है, नृत्य पक्ष हो गया, भाव पक्ष में जब हम अलग अलग जो बंदिशें, जैसे मैंने आपको कहा ठुमरी हो गई, भजन हो गया, ये सब पे हम नृत्य करते हैं प्रस्तुत। इसके अलावा कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें देयर इज टेक्निक टू इट, हम फॉलो करते हैं सर्टन हमारे रूल्स, लेकिन बहुत खुला है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत स्कोप है, आप क्रिएट कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो उस फ्रेमवर्क में रहते हुए और आप नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो वो एक बहुत खास बात होती है कथक की। और जैसे क्रिएट करने के लिए आप ताल पक्ष की भी चीजें क्रिएट करते हैं, भाव पक्ष की भी क्रिएट करते हैं। आजकल उसमें बहुत सारी नई नई लोग अपना क्रिएटिविटी, नया नया तौर तरीके, नई चीजें उसमें अपना के नया नया तरीके से करते हैं। बट ट्रेडिशनली इसमें भाव पक्ष में एक गत भाव भी होता है। गत भाव मतलब जिसमें सिर्फ देयर इज नो वर्ड्स टू इट, कोई ना पोएट्री होगी ना कोई गाना होगा, सिर्फ नगमा चल रहा होगा
मतलब Beat. सादी भाषा में कहें तो म्यूजिक चल रहा है, नगमा चल रहा है, एक मतलब 16 मात्रा का नगमा चल रहा है, और आप उसके ऊपर आप एक स्टोरी, जैसे मान लीजिए आपने माखन चोरी लिया, या आपने सीता हरण लिया, या आपने द्रौपदी वस्त्रायन, जो भी हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज, या आजकल की मॉडर्न भी आपको एक स्टोरी ले सकते हैं और उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं भाव में. सो यू जस्ट your facial expressions, your hand movements and everything, and you're presenting that. So that is gadbhav. वो उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. तो ऐसा पूरा रेपिटोर होता है जिसमें ठाट, उठान, आमद, तोड़े, टुकड़े, परन, ये सब उसमें हम फिर प्रस्तुत करते हैं. ये पूरा एक फॉर्मेट जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. तो ये कथक जैसे जो भी आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं इस तरह से देखा होगा कि ये इस तरह से किया जाता है. तो द स्टूडेंट जो आपके पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, what are some of the first few things that you want to educate them about when you start teaching? देखिए, पहली चीज तो डांस के लिए जब आते हैं, when the students come, most of them do not know what is classical art form. The difference between classical, folk, Bollywood, contemporary, and there are variety, right? So first of all, I really appreciate those parents who encourage their children to learn classical art. Yes. Whether it is dance or music or singing, whichever, then they go to learn classical, because it is something like आपने बच्चे का बेस जो है वो पक्का कर दिया. एक तो आप अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं, और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जब आप किसी भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म में जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वो बाद में बच्चे को पता चलते हैं लेटर ऑन. तो उसके लिए बच्चे को पहले तो जैसे पेरेंट्स लाते हैं, तो बच्चा हैज टू बी टोल्ड दैट दिस इज अ क्लासिक, वो धीरे धीरे समझने लगता है. देन द पेरेंट्स नीड टू बी, आई शुड से, सिंसियर अबाउट ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन टू क्लास. मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ. आजकल तो एक बहुत अच्छी चीज हुई है, which I would like to mention over here, that this is a thing which is new right now. We have a lot of adult learners. When I say adult learners, they are those women, I would say, who are established, who have achieved something in their life. वो professionally कहीं अच्छी जगह पर हैं, स्टेबल हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, या अगर होम मेकर्स हैं, they have children, grown up children. शायद probably their children are grown up and now they have an empty nest. So now they come back to something that they always wanted to do. They wanted to learn dance when they were young, and now they've come back. So this is also one of the categories who are there, who are coming to learn dance nowadays, which is increasing, which is so nice to That's see so them nice to pursuing know. something. Yes, joining something to pursue something which they always wanted to do, and they were not able to do because of any circumstances. There are many circumstances that they have faced, but they get a chance and they are taking up that. So the problem here is, when they join, initially interest बहुत होता है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं, but they are not able to continue. So one thing that I would like to mention over here, as you said, for the students is, when they are learning any classical art form, they should stick to it and learn it, because when you are learning any classical art form, I would say more about Kathak, initially it takes at least a few years to understand what this art form is. That is the challenge. Yes, that is the challenge. And बच्चों को क्या लगता है, आजकल देखते हैं टीवी पर, और एक गाना सीखा और परफॉर्म कर दिया,
कब डांस कर सकते स्टेज पर, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम्स अप इनटू देयर माइंड कि बस ये सीखने लगे। तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी होते हैं जब सीखने आते हैं, कितने दिनों का कोर्स है, कितने महीनों का कोर्स है। ये तो ऐसा है कि मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बिल्कुल। देयर इज सो मच टू लर्न एंड सीख ही रही हूँ, ये खत्म होना ही नहीं है सीखना। तो ये चीज समझना कि हमें ये कंटिन्यू करना है, और जब कुछ साल जब सीखने लगते हैं तब उसकी समझ आने लगती है और अपने आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। और बस फिर वो होता है ना कि जैसे अब चख लिया तो अब तो और चाहिए। बिल्कुल। तो so you want more, then you want to more learn more, you want to be with the art form more, and then you start actually enjoying कि जो right kind of enjoyment जो होता है वो आपको मिलने लगता है। और तो मुझे लगता है sincerity something is required. एंड द गुड थिंग इज कि अभी भी हमारे आसपास आप जैसे गुरु हैं जो सिखा रहे हैं। तो मैं अपने आप को गुरु नहीं कहती हूँ, मुझे गुरु नहीं, हम तो कहेंगे भाई, हम तो कहेंगे। तो जो सीखना चाहते हैं उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को जो सिखाना चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, बट इन द लॉन्ग रन के जो सुकून मिलेगा, जो सुख मिलेगा, उसको आप और किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक दोनों दो मोटिवेशन एंड द गोल फॉर क्लासिकल आर्ट्स इज डिफरेंट. Like you said, it's not instant performance. Performance is Yes. not, the end goal. कि हाँ, वो अपने आप को साधना है actually. It's a साधना. अपने आप को यस, नृत्य कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म ये साधना ही है। और जितना आप साधेंगे आपको पता लगेगा कि आप और बहुत है करने के लिए। जितना डूबना चाहे, जितना करना चाहे उसमें। और यस। सो संगीता, आई थिंक मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, ये जो ओपन डायस आपने शुरू किया है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसको आप कहाँ ले जाना चाहती हैं? लाइक व्हाट इज योर गोल? राइट जी, देखिए इसकी शुरुआत ऐसी हुई क्योंकि जैसे कि अभी बैकग्राउंड समझ ही गया, आई एम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आर्ट हैज बीन देयर ऑलवेज। तो जो चैलेंजेस बहुत सारे देखे इसमें। एक चैलेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्टिस्ट ये होता है कि आर्टिस्ट को बहुत अच्छा स्टेज नहीं मिलता। अच्छा स्टेज का मतलब जागरूक ऑडियंस में कहते हैं। हाँ, सो ट्रू। बिल्कुल, है ना, ऐसा ऑडियंस जो समझे उस आर्ट फॉर्म को। क्योंकि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते हैं या उसका आस्वाद ले सकते हैं उस कला का, तो उसका सही मजा उस आर्टिस्ट को भी आता है, उस कलाकार को भी उसका सही वो और दे भी पाते हैं। राइट। तो ये दो तरफा इसके ऑब्जेक्टिव थे फॉर ओपन डायस। एक ये कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को अच्छा स्टेज प्रोवाइड किया जाए, तो आर्टिस्ट को अच्छा स्टेज मिले। दिस वाज फॉर द सेक ऑफ आर्टिस्ट, एंड ऐसे हम ऑडियंस क्रिएट करें, मोर एंड मोर ऑडियंस क्रिएट करें जो शास्त्रीय हमारे कलाएं हैं उसका आस्वाद ले सके, उसको समझ सके और अप्रिशिएट कर सके। तो ऐसे और ज्यादा ऑडियंस क्रिएट करना, ये दो तरफा ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये स्टार्ट किया था। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट हमने वही सोचा, फॉर द आर्टिस्ट बाय द आर्टिस्ट। तो इस तरह से ये ओपन डायस की शुरुआत हुई। ओपन डायस का सेटअप छोटा भी इसलिए रखा, हम बड़ा स्टेज भी कर सकते थे, बट आज वी आर डूइंग इन आवर ओन रिसोर्सेज। मतलब उसका एक और ये है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीबडी, वी आर नॉट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो whatever we are doing whatever little possible it is for us, हम वो कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक वो था कि एक क्लोज इंटरैक्शन के साथ वो परफॉर्मेंसेस करना, वो भी एक ऑब्जेक्टिव था जिसमें कि
जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो जैसे डांस सीख रहे हैं, तो डांस के स्टूडेंट्स आएंगे, गाने के स्टूडेंट्स आएंगे, गाने के परफॉर्मेंस है, इंस्ट्रूमेंट के, क्योंकि हमारे अब तक 1.5-2.5 साल जैसे मैंने कहा हो गया है हमारे ओपन डेस्क को। तो इसमें जितने परफॉर्मेंसेस हुए उसमें हमने कथक किया है, भरतनाट्यम किया है, फिर उसके बाद में मोहिनीअट्टम हुआ है, गाने के परफॉर्मेंसेस हुए हैं, सितार हुआ है, तबला हुआ है, हारमोनियम हुआ है, और ये सारे परफॉर्मेंसेस यहाँ पर, और एक स्किट का परफॉर्मेंस भी हुआ था। अरे वाह! So we've had that also. है ना? तो ये पूरा वैरायटी वहां पर प्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो ये वो फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने कहा, हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये ओपन डेस्क इस आइडिया से तो स्टार्ट हुआ। नाउ द थिंग इज, और आगे एक स्टेप ये है कि ये ज्यादा हम जोड़ना चाह रहे हैं विद द यंगर जनरेशन, बिकॉज आज क्या हो रहा है, ऑडियंस जो होती है वो ये है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है विद द आर्ट फॉर्म, या तो कोई है जो ऑलरेडी अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो है जो सीख रहे हैं। अब इसे हम और फैलाना चाहते हैं, ऑडियंस बेस बड़ा करना चाहते हैं। So want to connect with probably schools and want to take it to smaller cities या smaller towns या थोड़े villages, वहां अब लेकर के जाना चाहती हूँ मैं। मतलब हमारी जो इसके पीछे इच्छा है, जो वर्क हम कर रहे हैं आगे, ये है कि जिस तरह से नागपुर में हम ओपन डेस्क चला रहे हैं, इसी तरह से ओपन डेस्क के अलग अलग सिटीज में सेंटर्स हों। तो अगर कोई भी हमसे कनेक्ट करना चाहता है कोई इस तरह से, तो वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद सच पीपल, सो दैट वहां के आर्टिस्ट को भी मौका मिले, और वहां के कुछ लोग जो ये करना चाह रहे हैं, सो वी कैन डू इट टुगेदर, सो दैट हाँ कोलैब करके और अलग अलग जगहों पर हम इसको लेकर जाना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि जो डांस का परफॉर्मेंस होता है उसके लिए आपको बहुत सारे और साधन भी चाहिए होते हैं। यू नीड अ म्यूजिशियन, तबला वाले चाहिए आपको, एक गायन के लिए चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए अलग अलग। तो ये भी एक धारणा है कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उनको अडॉप्ट करना कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज देयर इज एन एक्सपेंस इन्वॉल्व इन इट, इट्स नॉट वेरी। बिल्कुल सही। तो इस बारे में बिल्कुल सही बताइए। हाँ, देखिए, जो डांसर है, जैसे कथक डांसर अगर हुए, तो आपको सिर्फ देखिए, आप जब सीख रहे हैं तो आपको अपना जो समय देना है, आपको सीखने के लिए जो सब करना है वो तो करना ही है। उसके बाद जब परफॉर्मेंस की बारी आती है, तो जो नृत्य कर रहे हैं, जो डांसर है, उनको साथ में अकम्पनिंग आर्टिस्ट लगते हैं। कम से कम एक तबला और हारमोनियम के लिए, गाने के लिए कोई लगेगा। अगर आप और सही से रखना चाहें तो सितार है, फ्लूट है, मृदंग, पखावज है, ये सारे आपको। अब ये सब जब अकम्पनिंग आर्टिस्ट आप लेते हैं, तो आपको उन्हें तो कुछ उनको मानधन तो देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये तो सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि nobody will come just like that and should not, right? तो आपका तो एक्सपेंस या आपके जो चार्जेस है वो तो एक चीज अलग हो जाती है, लेकिन एक आपको बेसिक कॉस्ट लगता है फॉर योर अकम्पनिंग आर्टिस्ट। अच्छा, अगर आप रिकॉर्डेड म्यूजिक लेना चाहें तो वो भी तो रिकॉर्डिंग करानी पड़ती है, तो स्टूडियो के चार्जेस हैं, फिर अगेन आर्टिस्ट जो हैं आपके, उनके चार्जेस हैं। बस सिर्फ उसमें यह है कि आप वो रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हैं एक बार से ज्यादा, लेकिन हर बार वो भी यूज नहीं हो सकता है। तो अगेन चैलेंजेस तो बहुत है। तो व्हेनेवर क्या होता है कि जब कोई परफॉर्मेंस होता है इन जनरल, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि इतना क्या पैसा लगता है, या why are we supposed to pay so much to the artist? So it is not just paying to the artist. Somebody should understand
कि उसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं और वो सारे एक्सपेंसेस पहले कवर होंगे उसके बाद, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट आर्टिस्ट, वो कर जो रहे हैं इट इज, है ना, तो वो जरूरी है समझना। और इसके लिए, इसलिए जो ये ओपन डेस्क की, फिर मैं उस पे आती हूँ कि ओपन डेस्क की जो हमारी बात है और आगे जो इसको लेकर जाने की बात है, वहां कहीं ना कहीं हमें फंड्स की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको उस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं जहां हम आर्टिस्ट को सही तरीके से उनको रिस्पेक्ट दे सके और उनका मानधन हम दे सके, जो बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए फंड्स की जरूरत है, जो अब कुछ उसके लिए करना होगा। तो ये जो कला को जीवित रखना कोई आसान काम नहीं है ना? आई थिंक वी वुड लाइक टू अपील टू एवरीवन हु इज लिसनिंग इन कि जो कोलैबोरेशंस संगीता जी करना चाहती हैं दूसरी सिटीज में जाके और छोटे छोटे शहरों में जाके, तो अगर ऐसे कोई हैं कला के प्रेमी एंड कलाकार, दे कैन रीच आउट टू हर, है ना? We would be great. Yes, it would be great to have people joining us. अब जैसे हमने जो फर्स्ट एनिवर्सरी की थी, we had sponsors and वो स्पॉन्सरशिप के वजह से हम उतने बड़े स्केल पर प्रोग्राम कर पाए, हमारे जो एनिवर्सरी प्रोग्राम्स हैं। तो ये इसी तरह से बाकी भी सारे प्रोग्राम्स में हम क्योंकि हमारा मोटिव इज कि हम ऑडियंस के लिए तो ये फ्री ही रखना चाहते हैं, लेकिन वी शुड डू समथिंग फॉर द आर्टिस्ट। तो इसके लिए डेफिनेटली जो भी हमसे जुड़ना चाहें, एंड स्पॉन्सरशिप्स आर वेलकम फॉर दिस। तो ये डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको भी, जहां वो अपने फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर सके फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो एक एज अ कथक गुरु, आप जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो नए बच्चे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहती हैं? एक मैसेज दीजिए। तो इसके लिए बच्चों को यही एक कहूंगी कि एक सिंपल एग्जाम्पल से जो मैं बताती हूँ, फास्ट फूड एंड हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट टेस्ट में फास्ट फूड अच्छा लगता है और मजा आता है ना? लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप बहुत फास्ट फूड पर रहें तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। सेम इज द केस, आप क्लासिकल आर्ट फॉर्म से जुड़े रहेंगे, लॉन्ग रन में इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदे हैं। और बाकी ये मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी सबसे ना जुड़े, लेकिन उससे जुड़ के और इसको छोड़ देना, जो छोटे से एक क्षण भर के लिए आपको जो आनंद मिलता है वहां से, उसके लिए आपने ये छोड़ दिया, ये सही नहीं है। और अगर करना भी है किसी को, तो उसकी जड़ पहले किसी भी चीज की मजबूत हो, तो फिर वो पेड़ भी एकदम हरा भरा रहेगा। तो वही जो बेसिक्स है, बेसिक्स तो क्लासिकल में है, चाहे आप गा रहे हैं, चाहे आप डांस कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, आपको क्लासिकल पहले सीखना चाहिए। आप वहां अच्छे से समझिए, उसको कीजिए, फिर आप खुद समझेंगे कि आपको क्या लाइफ में करना है। तो छोटे शॉर्ट टर्म गेन्स या शॉर्ट एकदम छोटे छोटे चीज में जो आपको नहीं एक हाई मिल जाता है और स्पार्क मिलता है, उसके लिए आपने एक छोटा सा एक डांस कर लिया, वाह वाह बच्चा क्या किया तुमने, उसमें मजा नहीं है जब तक आप सही चीज नहीं सीखते, सही चीज सही तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं करते। तो वो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप सही क्लासिकल आप पहले सीखिए, शास्त्रीय सीखिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये एक साधना है, और वो जो साधना है उसमें आपको इतने सारे और एड ऑन्स मिलते जाएंगे दैट यू विल यू नो, वो आपको शुरू में तो पता ही नहीं होगा कि एड ऑन्स क्या है, बाद में बहुत समझ में आता है, और जितना आप रियलाइज करते चले जाते हैं आपको पता लगता है आपको बहुत कुछ लाइफ में मिलता है इसके साथ। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यंग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे,
ये जी एक आम धारणा है कि यंगस्टर्स के अंदर पेशेंस नहीं है, यंगस्टर्स, लॉट ऑफ पीपल हैव a very negative kind of a perception about the youth. लेकिन वहां मैं उस दिन आई थी और पिछली बार भी मैंने की, मैं रियलाइज कि हम लोग को ऐसे एक, इट्स सच अ प्रॉमिस ऑफ यूथ ना, हम क्या उनको देते हैं उस पर डिपेंड करता है. एब्सोल्युटली दे हैव सो मच एनर्जी, दे हैव सो मच टू डू, दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है जो यंग बच्चे हैं जो आपके साथ हैं अभी, हाउ डू दे टेक देखिए, द एक्सपीरियंस? हाँ, एज यू राइटली सेड, बच्चों में एनर्जी बहुत होती है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी. हम्म. इट इज ऑलवेज अबाउट चैनलाइजिंग देयर एनर्जी इन द हाँ. राइट वे. हम्म. तो चैनलाइजिंग देयर एनर्जी इन द राइट वे में यहाँ आता है पेरेंट्स का रोल कि वो एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हैं. हम्म. तो अगर आप क्लासिकल आर्ट फॉर्म से जोड़ते हैं, वहां उनकी जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, चैनलाइज होती है. एंड ये जो आपने कहा कि उनमें पेशेंस नहीं है, कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म सीखने वाला बच्चा, आप उसको इम्पेशेंट नहीं देखेंगे, आप उसको डिप्रेस यस, नहीं देखेंगे. यस, यस. हम्म. आप दे विल बी फुल ऑफ एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी को इतना सही तरीके से चैनलाइज किया जाता है, बाय डिफॉल्ट वो होता है. तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे में एक बेसिक पेशेंस लेवल आ जाता है, एक शांत हो जाता है वो बच्चा. वो जो फिजिटी होते हैं उनका फिजिटीनेस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 मिनट से ज्यादा वो बैठ नहीं सकते, पेरेंट्स का कि 5 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, दिल गेट अप, दिल वर्क, दिल डू समथिंग. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये ऑटोमेटिकली जब आप, क्योंकि फिर हम उसी पे आते हैं, साधना है. जब आप तत्कार करें, आप 10 मिनट तत्कार करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप कुछ एक चीज कर रहे हैं, कोई बंदिश कर रहे हैं, उसको आप बार बार उसका रियाज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप में पेशेंस भी आता है, फोकस भी आता है, कॉन्सेंट्रेशन भी आता है. वो सारी चीजें आपको मिलती हैं. एंड डंडे से नहीं, अपने आप बच्चा अपने आप वो आ जाता है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप उसमें आ जाता है. So before we conclude this एक संवाद with you, is there a message that you would like to share from your perspective for the audience? हाँ, ऑडियंस के लिए डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि ऑडियंस ने जाकर क्लासिकल प्रोग्राम्स देखने चाहिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में है क्या. बहुत बार हमने ये भी देखा है कि बच्चे का परफॉर्मेंस हो रहा होता है, एंड जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसके पेरेंट्स में से 2 में से कोई एक ही पेरेंट कभी कभी आते हैं, वो भी नहीं आएंगे. तो इस तरह का रिस्पॉन्स जब होता है, वो बच्चा भी कैसे मोटिवेट होगा, आर्टिस्ट कैसे मोटिवेट होगा अगर ऑडियंस नहीं है. तो सिर्फ सिखाने से नहीं होगा, सिर्फ इसके बारे में बात करने से नहीं होगा, आपको परफॉर्मेंसेस देखने चाहिए, अटेंड करनी चाहिए. जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे, आप उसका मजा भी नहीं ले सकेंगे, उसको समझ भी नहीं पाएंगे. हो सकता है पहली बार में, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं क्लासिकल थोड़ा बोर होता है, समझ नहीं आता है. आप उसको सुनिए, सुनेंगे, सुन के आपको समझ में आने लगता है, देख देख के समझ में आने लगता है, और आप उसको एंजॉय करने लगते हैं. कोई खाने होते हैं ना, कोई फूड्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम आपको टेस्ट नहीं होता है. आप अगर नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडियन फूड का टेस्ट आपको डेवलप करना पड़ता है. आप 2 बार खाएंगे, तीसरी बार में आपको बहुत बढ़िया लगने ना, आई वॉज मिसिंग दिस, राइट. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. शायद 2 बार के बाद आपको लगने लगे कि ओ माय गॉड, आई वॉज मिसिंग दिस इन माई लाइफ. Absolutely, तो yes. ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझें और जाएं, और ऐसे जो क्लासिकल कॉन्सर्ट्स हैं अटेंड करें, उन्हें देखें, आर्टिस्ट को बढ़ावा दें, और आगे उसको लेकर जाने की कोशिश करें. Thank you so much. Thank you for being on Ek Samvad. Thank you. थैंक यू.